नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर जो MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो है उसका लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो काइंडली वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, नो। इट मस्ट बी साइंड बाय द पेई, यस। जो पेई के सिग्नेचर होने जरूरी नहीं है, ठीक है। बी, इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यस इट इज एन एसेंशियल फीचर। इट मस्ट डायरेक्ट अ सर्टेन पर्सन टू पे मनी ओनली, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर। देयरफॉर जो पेई के सिग्नेचर हैं वो मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question. A bill of exchange contains conditional promise? No. Unconditional order to pay? Yes. Therefore, the correct answer is B. Next. In a bill of exchange, who is the party that is ordered to make payment? कौन सी पार्टी को पेमेंट करने के लिए बोला जाता है? It's a drawee. Answer is C. The phrase to pay a certain sum of money only in section 5 implies, ठीक है। जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कहा जाता है कि जो पेमेंट होगा वो पैसों की टर्म्स में होगा, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज पेमेंट मस्ट बी ओनली इन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शन इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी कंसिडर्ड अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज? वैलिड कौन सा होगा? अ रिटन ऑर्डर साइंड बाय ए डायरेक्टिंग टू पे 5,000 to C without any condition. Unconditional order is valid. Which of the following statement is true about the bill of exchange? It can be oral, it must contain conditional promise, it requires 3 parties. Yes, bill of exchange में 3 parties होंगी, drawer, drawee, pay. Drawer कौन होगा? जो मेकर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। ड्रॉई कौन है? जिसने पेमेंट करना है। पेई कौन है? बेनिफिशियरी। ओके। What is the legal effect if bill of exchange is not signed by the drawer? अगर drawer sign नहीं करता, essential condition fulfill नहीं हुई, it is no longer valid. It is not a valid negotiable instrument. दोस्तों, negotiable instrument वो होता है कि जिस instrument को हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। बिल ऑफ एक्सचेंज एक negotiable instrument है। Therefore, अगर ड्रॉर के साइन नहीं है तो ये वैलिड negotiable instrument नहीं होगा। Which of the following options correctly describes the legal nature of bill of exchange? Legal nature of bill of exchange. It is an instrument containing an order to the drawee. Yes, it is okay. It is a contract between drawer and pay. No. It is promise made to the drawee. No. It is a guarantee. Therefore, the correct answer is the C option. It is an instrument containing an order to the drawee. इसमें maker के द्वारा order किया जाता है drawee को, ठीक है। Then in a valid bill of exchange, the amount mentioned must be, it should be definite and payable in money only. Therefore, the correct option is C. A bill of exchange must be addressed to, किसको एड्रेस करना चाहिए? द पर्सन, अ सर्टन पर्सन और एंटिटी, ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, RBI नहीं, अनसर्टन पर्सन नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। A valid bill of exchange must not contain which of the following? किसमें नहीं होना चाहिए? Obviously, the conditional statements, unconditional order होना चाहिए। Therefore, the statement pay rupees 5,000 if goods are sold, it is conditional order, therefore it is not valid. Which of the following is optional in bill of exchange in under NIA? Optional क्या होगा? Signature of drawer? No. It is essential. Date of drawing? Yes. Name of drawee? No. It is not optional. Unconditional order to pay? No. Therefore, date of drawing is optional, but ये इसका बहुत relevance है because maturity date जो है वो date of drawing से ही consider की जाती है। If a bill of exchange is made payable to bearer, what restriction it is? दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज नो डाउट वैलिड होगा अगर पेएबल टू बेरर है, बट एज पर RBI एक्ट इट इज वॉइड, ये यूज नहीं होगा। देयरफॉर बिल ऑफ एक्सचेंज या तो किसी की फेवर में होना चाहिए, उसका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, ठीक है। Which of the following illustration is a valid bill of exchange? Pay rupees 10,000 to me after approval? No, no, no. Pay 7,500 to Raj or order means no condition should apply.
अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अनिल, अनिल ने ड्रॉ करा, सुनील को बोला गया जो कि ड्रॉई है टू पे 25,000 टू रोहित। ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई ऑफ कोर्स सुनील होगा, जिसने पेमेंट करना है वो ड्रॉई है, ठीक है, जिसको पेमेंट होगा वो बेनिफिशियरी, वो पे ही होगा, सुनील इज द ड्रॉई। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय प्रिया, प्रिया ने ड्रॉ करा, अनिल को बोला गया कि 30,000 पे करना है प्रिया को, ठीक है, यस इट इज अ वैलिड, बिकॉज इसमें क्या है कि ड्रॉर, नो डाउट इसमें क्या है कि जो पेमेंट किसको करना है, प्रिया को ही करना है, देयरफॉर ड्रॉर एंड पे कैन बी सेम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है, ठीक है, it which of the following is essential element? Signature of witness, no. Unconditional order to pay, yes. Company letterhead, no. GSTI number, no. Unconditional order to pay is the essential element of bill of exchange. Okay, who is responsible for signing a bill of exchange to make it legally valid? Obviously drawer is responsible. Essential condition है कि drawer के signature होनी चाहिए। Which of the following elements if included makes a bill of exchange negotiable? Transferable instrument कैसे बनता है ये? जब इसको to a certain person or their order or bearer, ये स्टेटमेंट इसको ट्रांसफरेबल बनाती है। जब हम बोलते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को इसको पेमेंट करना है, तो नेचुरल है ये बिल जो है ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे को, तो ये स्टेटमेंट इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। What is the significance of the drawings acceptance in a bill of exchange? दोस्तों ये एक्सेप्टेंस का टॉपिक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो ड्रॉई के पास भेजा जाता है कि ड्रॉई अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करे, जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करे। तो इसका मतलब अगर ये ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ड्रॉई फिर लाइबल नहीं होगा। Therefore correct answer is B. It establishes the draw's liability to pay. Which of the following is not a mandatory element of bill of exchange? कौन सी चीज मैंडेटरी नहीं है? डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मैंडेटरी, बाकी सारे एलिमेंट्स असेंशियल है, डायरेक्शन असेंशियल, साइन टू पे सर्टेन सम। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मैंडेटरी, ऑल्दो मेच्योरिटी जो है वो डेट ऑफ ड्रॉइंग से ही डिसाइड होगा। Why must a bill of exchange specify that the payment is to be made to a certain person or their order or bearer? बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा पेमेंट जो ड्रॉई को करना होता है वो पेई के फेवर में, वो किसी पर्सन का नाम होगा या उसका ऑर्डर होगा या उसका बेरर का, या उस बेरर लिखा होगा, ठीक है, उसके लिए क्यों, इसी के कारण तो बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है, मींस ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज लैक्स द ड्रॉइज एक्सेप्टेंस, अगर ड्रॉई का एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ड्रॉई लायबल नहीं रहेगा, ठीक है, ड्रॉई इज नॉट लीगली लायबल। एक बार फिर से देखते हैं, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज लैक्स द ड्रॉइज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज लीगल कॉन्सिक्वेंस? ड्रॉई इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे। करेक्ट आंसर इज बी, कि ड्रॉई की लाइबिलिटी कोई नहीं होगी। Which optional element of bill of exchange is critical in jurisdiction where the Stamp Act applies? Therefore, Stamp Act के कहाँ पे आएगा? जहाँ पे स्टैम्प यूज करना पड़ेगा हर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, it must be properly stamped. Therefore, it is stamped as per Stamp Act. A bill of exchange includes a condition that payment will only be made if drawee receives good. No, it is not valid. It is a conditional order. Therefore, conditional order is not valid. Therefore, no, the order must be unconditional. Correct answer is B. How does the inclusion of noting protesting details in a bill of exchange benefit the payee in case of non-payment? दोस्तों नोटिंग प्रोटेस्टिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं ब्रीफ कर दूं, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है लीगली, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का। ये मैंडेटरी नहीं है, बट इससे होता क्या है कि आपका जो स्टैंड जो है वो सॉलिड हो जाता है, लीगल एविडेंस स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस टू द बिल्स डिसऑनर। ये हम आगे देखेंगे। In a bill of exchange, why is the inclusion of serial number, reference number beneficial? Although ये optional चीज है, but इससे एक sequence maintain रहता है. It facilitates tracking and record keeping. Yes, correct answer is B. इससे एक easiness रहती है बिल को maintain करने में.
अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड विदाउट स्पेसिफाइंग द प्लेस ऑफ पेमेंट, उसमें प्लेस ऑफ पेमेंट नहीं मेंशन है तो क्या होगा, अगर उसमें नो डाउट बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है, प्लेस ऑफ पेमेंट ना होने से ज्यूरिसडिक्शन का सिर्फ इशू आएगा, तो ज्यूरिसडिक्शन जो शिफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉइज का। अगर तो ड्रॉर ने बिल ऑफ पेमेंट प्लेस मेंशन करा होता तो वही होता, अगर ड्रॉर ने कुछ मेंशन नहीं करा तो ज्यूरिसडिक्शन कौन सी कोर्ट का आएगा, वो आएगा ड्रॉइज की कोर्ट का, जहां पे ड्रॉई होगा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस कोर्ट में देखा जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। Under what circumstance might the inclusion of terms of interest in a bill of exchange be particularly significant? दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी शो करना पड़ता है, ऑल्दो वो ऑप्शनल है, बट जो बड़े डील्स होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें काफ़ी सारे डिलेड पेमेंट्स होते हैं, तो उनमें ये इस चीज़ का यूज़ होता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी, व्हेन द बिल इज यूज्ड इन इंटरनेशनल डिलेड पेमेंट्स। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नोटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट? नोटिंग किसके लिए यूज होता है? जब भी बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग करा जाता है। देयरफॉर टू रिकॉर्ड द डिसऑनर फॉर लीगल एविडेंस, ये एक स्ट्रांग एविडेंस बनाता है, इसलिए नोटिंग यूज होता है। A bill of exchange includes a clause stating that payment is contingent on the drawee satisfaction with delivered goods. Payment is conditional. No, it is problematic. This bill of exchange is not valid. It violates the requirement of being, it contradicts the yes, it contradicts the requirement of unconditional order. Correct answer is B. It contradicts the requirement of unconditional order. In a bill of exchange, why is the inclusion of GST number particularly relevant in certain jurisdiction? GST number is optional. So ये इसका यूज क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि जो टैक्स एंड बिजनेस रेगुलेशंस है उनकी कंप्लायंस हो जाएगी उसके ऊपर, इसलिए जीएसटी नंबर मेंशन कर देना चाहिए। ऑल्दो बिल ऑफ एक्सचेंज को वैलिडेट करने के लिए जरूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज है। करेक्ट आंसर इज बी। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड विदाउट अ ड्यू डेट, अगर कोई ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट उस पर मेंशन नहीं है तो क्या होगा? फिर कौन सी ड्यू डेट होगी? जब भी वो पेबल, जब भी उसको प्रेजेंट करा जाएगा, डिमांड मींस जब भी वो भेजा जाएगा उसी दिन वो उसका मेच्योरिटी होगा। इट इज पेबल ऑन डिमांड। What role does the place of drawing play in the bill of exchange? Why it is significant? जो ड्रॉर का प्लेस है, जो लिखा जाता है कि पे ड्रॉन एट, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ज्यूरिसडिक्शन, अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो जो किस जगह, कौन सी जगह की कोर्ट देखेगी जहां पे वो प्लेस मेंशन्ड है। इट एस्टैब्लिश द ज्यूरिसडिक्शन। ओके, a bill of exchange is protested after being dishonored. Okay, what is the primary legal benefit? Protesting का benefit क्या है? एक legal evidence strong हो जाता है आपका। आपका नो डाउट प्रोटेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी एवरीवेयर, बट ये एक ऑप्शनल है, बट इससे एक आपका लीगल एविडेंस स्ट्रांग होता है। क्या आएगा इसमें? इट स्ट्रेंथन्स द पेइज केस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। A bill of exchange includes a clause stating that payment will be made only in gold. No, no, no. Payment हमेशा पैसे में होगा, रुपीज में होगा, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। No, as the payment must in legal tender currency. Therefore, correct option is B. What is the legal implication of bill of exchange is issued without specifying the payer's name but states to bearer? देखो दोस्तों, bearer का हो सकता है, तो इसमें होगा क्या? वैसे आरबीआई ने ये बैन करा है कि bearer are not allowed, बट अगर वो bearer mentioned है तो वैलिड तो होगा, बट पेमेंट किसको होगा? जिसके पास वो बिल होगा। Therefore, correct answer is B. Why might the inclusion of company letterhead in a bill of exchange be advantageous? जब letterhead के ऊपर कोई bill of exchange बनाया जाता है तो उसका बेनिफिट क्या है? letterhead में क्या होगा दोस्तों कि ये ऑप्शनल है, बट इससे क्या होगा? बिल की ऑथेंटिसिटी, प्रोफेशनल अपीयरेंस आएगा उससे। स्टैम्प एक्ट नो रोल, इट सब्सटीट्यूट फॉर ड्रॉ, नो नो नो, इट मेक्स अ नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इससे एक ऑथेंटिसिटी एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस आता है। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, अगर उसने ड्रॉई ने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो हु रिमेन्स प्राइमरली लायबल? कौन लायबल होगा? ड्रॉई तो बाहर हो गया, कौन रह गया? ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स। देयरफॉर उसमें इंडोर्सर्स नहीं है तो ये ड्रॉर की लाइबिलिटी होगी पेमेंट करना का, ठीक है। अगर ड्रॉई नहीं एक्सेप्ट करता तो ड्रॉर, इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। A bill of exchange specifies payment 30 days after sight। 30 days after sight का मतलब है जब
जो ड्रॉई है वो बिल को चेक कर लेगा तो 30 दिन उसके 30 दिन के बाद मेच्योरिटी होगा, ठीक है। तो पेमेंट इज ड्यू 30 days आफ्टर द ड्रॉई सीज द बिल। यस, करेक्ट आंसर इज बी। Why is the signature of witness considered an optional element in a bill of exchange? दोस्तों, जो विटनेस के सिग्नेचर हैं वो एज पर लॉ तो रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक ऑप्शनल एलिमेंट होगा। इसको मतलब ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द बिल्स वैलिडिटी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। A bill of exchange is issued with a clause stating that payable only if the draw's bank account has sufficient funds. No, it is not valid because it is conditional payment. Conditional orders are not allowed, only unconditional orders. Therefore, it violates the requirement of unconditional order. In the context of international trade, why might the place of payment be critical optional element? Place of payment क्यों है इतना important? क्योंकि जब डिस्प्यूट अराइज होगा तो ज्यूरिस्डिक्शन किस कोर्ट का होगा वो प्लेस से डिफाइन होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। What happens if a bill of exchange is dishonored and no protesting details are recorded? देखो, अगर प्रोटेस्ट नहीं करा कोई इशू नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं था, बट आपका लीगल एविडेंस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है? द पे कैन स्टिल, यस, द पे कैन स्टिल सीक द लीगल रिकोर्स बट एविडेंस इज वीकर, ठीक है। केस वो फाइल कर सकता है बट उसका एविडेंस वीकर है। सी ऑप्शन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड विदाउट अ डेट ऑफ ड्रॉइंग। यस, डेट ऑफ ड्रॉ नहीं मेंशन करा तो इसमें क्या होगा? जब कौन सी एज्यूम करी जाएगी? इशू डेट। अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है तो जब वो इशू उनके लेजर्स में चेक करा जाएगा कि कब इशू करा गया है, तो वही डेट को एज्यूम कर लिया जाएगा डेट ऑफ ड्राइंग। इट रिमेन्स इनफोर्सेबल बट द डेट इज एज्यूम टू बी द इशुएंस डेट। ओके, ये आपके लेजर से चेक होगा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन नहीं है। ओके, What happens if a bill of exchange does not specify the place of payment? अगर place of payment नहीं mention तो क्या होगा दोस्तों? इस केस में ऑप्शन देखते हैं। बिल becomes void and no, the bill remains valid, yes. अगर place of payment नहीं mention तो ड्रॉइज का पेमेंट, जो ड्रॉइज का एड्रेस है वही आ जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ड्रॉई के एड्रेस पे ही देखा जाएगा। What is the significance of the draw's acceptance in a bill of exchange? ड्रॉई के एक्सेप्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? वो लाइबिलिटी, वो लाइबल ही तब है जब वो एक्सेप्ट करेगा तो, ठीक है। अब देखते हैं। इट एस्टेब्लिशेस द ड्रॉइज लाइबिलिटी टू पे, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। What happens if a bill of exchange omits the date of drawing? अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग उसमें मेंशन नहीं है तो क्या होगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, बिल इन्फोर्सेबल है बट द डेट इज अज्यूम्ड टू बी द इशुएंस डेट। जब वो बिल जब इशू करा गया, लेजर्स चेक करे जाएंगे, जो उसमें इशुएंस डेट है वही डेट ऑफ ड्रॉइंग एज्यूम कर ली जाएगी। ओके, When is a bill of exchange payable 30 days after sight due for payment? अगर किसी का मेच्योरिटी 30 days after sight है, मीन्स जब वो देखेगा ड्रॉई उसके 30 दिन के बाद। Therefore, correct option is 30 days after the drawings accept or seize the bill. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं एक बार। 30 days after the bill, no. 30 days after the pay endorses, no. 30 days after the bill, no. जब वो देखेगा उसके बाद 30, बी ऑप्शन, ठीक है। How does specifying the place of payment in a bill of exchange benefit the parties involved? अगर place of payment mentioned है तो उसी कोर्ट का, अगर कोई dispute arise होता है तो उसी एरिया की, उसी जगह की कोर्ट का legal jurisdiction होगा। Therefore, it determines the legal jurisdiction for enforcement. Okay, B. A bill of exchange is drawn by MS Joshi Traders ने draw करा and Mr. Rehan to directing Mr. Rehan to pay 20,000 at side to pay, but the draw's acceptance is missing. Okay, drawing का acceptance नहीं है तो draw liable नहीं है। What is the implication of this omission? अगर drawing का acceptance नहीं है तो drawer and endorsers are liable. The bill remains valid, but the drawee is not liable until acceptance is obtained. Yes, the correct answer is B. The bill in a bill of exchange, drawee acceptance जरूरी है क्योंकि उसको लाइबल बनाता है। अगर वो नहीं है तो endorsers and drawers are liable. तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 50 MCQs कंप्लीट कर लिए।
और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो ज़रूर देखते रहें क्योंकि उनमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी थ्रू MCQs। थैंक यू।